हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियोस में हमने किया था रिलेशनशिप बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशियबिलिटी, इसके बारे में हमने बात की थी। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डेरिवेटिव के बारे में, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। अब डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस पहले मैं डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन की रूल्स क्या होते हैं। फॉर्मूलाज डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फॉर्मूलाज यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और टोटल 16 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूलाज इज डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x with respect to x which is equal to e की power x, differentiation of a raised to the power x which is equal to a raised to the power x into log of a। log of a को as it is ln of a भी हम लोग लिख सकते हैं। differentiation of log x या differentiation of ln x with respect to x which is equal to 1 by x, differentiation of sin x with respect to x which is cos x, differentiation of cos x with respect to x which is equal to minus sin x, and differentiation of tan x with respect to x which is equal to sec square x, differentiation of cot x with respect to x which is equal to minus cos square x, differentiation of sec x with respect to x which is equal to sec x into tan x, and differentiation of cos x which is equal to minus cos x into cot x, differentiation of sin inverse x with respect to x which is equal to 1 by 1 minus x square whole under root, and differentiation of cos inverse x with respect to x which is equal to minus 1 by 1 minus x square whole under root, differentiation of tan inverse x with respect to x which is equal to 1 by 1 plus x square, and differentiation of cot inverse x with respect to x which is equal to minus 1 by 1 plus x square, differentiation of sec inverse x with respect to x which is equal to 1 by x into x square minus 1 whole under root, and differentiation of cosec inverse x with respect to x which is equal to minus 1 by x into under root of x square minus 1। डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट इज द एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल। एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल, इफ y इज इक्वल टू u प्लस बी, पहला फंक्शन u होगा, सेकंड फंक्शन v होगा, y और fx इट द सेम थिंग, y और fx। सो dy by dx विच इज इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx। अगर माइनस यहां पे होगा तो ये आ जाएगा du by dx माइनस dv by dx which is equal to dy by dx or which is also called f dash of x। Similarly, product rule is also called the Leibniz rule। So y is equal to u into v, first function is u and second function is v, so dy by dx which is equal to differentiation of the first function into second function as it is plus differentiation of second function into first function as it is, which is also called f dash x। So we can write u dash into v plus v dash into u। आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो। थर्ड इज द क्वेश्चन रूल। Quotient rule is also called the division rule। Division rule is, it is in the form of the division, it is in the form of the quotient। So y is equal to u by v, so dy by dx which is equal to v square v into differentiation of u minus u into differentiation of v, means we can say that numerator upon denominator, ये आ गया numerator अपॉन डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x विच इज इक्वल टू 0। ऑलवेज कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन जो होंगे वो 0 होगा। कांस्टेंट जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द नंबर
1 2 3 even pi वैल्यू ऑफ g जितने। सेकंड चीज और ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, तो हम लोग क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और वेरिएबल को डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं इसमें क्वेश्चंस करता हूं अभी। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पाई इज 0, क्योंकि पाई क्या है, कांस्टेंट है। सेम एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज इक्वल टू 0। बट इसमें आप देखो, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 3 को बाहर ले लेंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फॉर्मूलेज मैंने बताया आपको, d ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू n इंटू x की पावर n-1। यहां पे n क्या हो गया, 2 हो गया, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू x की पावर 2-1 विच इज इक्वल टू 6 इंटू x की पावर 1 विच इज इक्वल टू 6। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि ये जानना जरूरी था। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। फॉर एग्जाम्पल y इज गिवन एज -3x² प्लस 4x प्लस 2। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करें, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू डी ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 4, बाहर कांस्टेंट है, बाहर होगा, वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट होंगे, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू, ये हो गया -3 n इंटू एक्स की पावर n-1, सो 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 प्लस 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, सो 1 इंटू एक्स की पावर 1-1 विच इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स की पावर 0 विच इज इक्वल टू एनी नंबर होल की पावर 0 इज 1 विच इज इक्वल टू 1। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज 0, सो -6 इंटू x अब प्लस 4, फाइनल आंसर इज -6x प्लस 4। So dy by dx which is also called the f dash x. अब मैं क्वेश्चंस जो करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चंस जितनी भी इनकी कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो ये समझो कि बेसिक चीजें आप समझ गए तो डिफरेंशिएशन में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अंदर में जो टेक्निकल चीजें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझने हैं। बेसिक फॉर्मूलेज हमने बताया आपको, बेसिक फॉर्मूलेज हमने क्या बताया था आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, फर्स्ट फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देखो यहां पे इसमें क्या है कि x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, ये अगर x है तो ये भी क्या होनी चाहिए, x होनी चाहिए। इसका ध्यान रखना, बस इस चीज का ध्यान रखना कि ये अगर यहां पे x है तो यहां पे भी क्या होना चाहिए, x होनी चाहिए। ठीक बात है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू x प्लस 2 होल की पावर 3।
अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स। हमें डिफरेंशिएट कहाँ तक करना है, x तक करना है। डिफरेंशिएट जो करना है वो x तक करना है। सो डी ऑफ x प्लस टू होल की पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मैंने पहले अभी नोट कर लिया कि विद डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ हमें x में, विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स डी ऑफ x प्लस टू होल की पावर 3। समझो यहां पे डी ऑफ x प्लस टू होल की पावर 3, इसकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये x होनी चाहिए, इसके डी ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यहां पे सेम नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय डी ऑफ x प्लस टू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि x की पावर n के फॉर्म में निकालने के लिए, ये x की पावर n के फॉर्म में आ जाए, डी ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप ये देखो, ये और ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब यहां देखो x प्लस टू और x प्लस टू ये सेम है, मल्टीप्लाइड बाई, इसे नहीं छोड़ना है आपको, आपको dx तक करना है, इसे नहीं छोड़ना है। फिर अगेन जो डिफरेंशिएट करेंगे डी ऑफ x प्लस टू विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आ जाओ, विच इज इक्वल टू, अब ये इस फॉर्म पे आ गया, इन प्लेस ऑफ x इज x प्लस टू और इन प्लेस ऑफ दिस वन इज x इज डी ऑफ x प्लस टू। सो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, 3 इंटू एक्स प्लस टू होल की पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, इसके अंदर में क्या हो जाएगा, एडिशन रूल लग जाएगा। तो dx बाई डी एक्स और प्लस डी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस टू होल की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0, विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस टू होल की पावर 2 एंड 1 प्लस 0 इज 1 multiplied by 3 into x plus 2 whole square as the same thing. So dy by dx is, answer will be 3 into x plus 2 की होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 होल की पावर 4। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में मैं 1-2 स्टेप लिख लेता हूं, बाद में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 ऑफ x प्लस 1 होल की पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx विच इज इक्वल टू डी ऑफ 3x प्लस 1 होल की पावर 4। यहाँ पे क्या करना, x की पावर n, x की पावर n, तो x यहाँ पे आनी चाहिए अपॉन डी ऑफ 3x प्लस 1 इंटू अगेन डी ऑफ 3x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, सो 4 इंटू 3x प्लस 1 होल की पावर 4 माइनस 1 इज 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब इसके अंदर में हो जाएगा 3 बाहर dx बाई डी एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फाइनल आंसर ये आ जाएगा 4 इंटू विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3x प्लस 1 होल की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा 3। So 4 3 is the 12 which is equal to 12 into 3x plus 1 whole की power 3. This is the final answer. Next question is y is equal to x plus b whole square. So y is equal to x plus b whole square, same as it is differentiation of x की power n with respect to x. ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। So dy by dx which is equal to d of ax plus b whole की पावर 2 upon d of ax plus b multiplied by d of ax plus b with respect to x. So dy by dx which is equal to n into x की पावर n minus 1, so 2 into ax plus b whole की पावर 2 minus 1 is 1 into
इसको a बाहर ले लेंगे और dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, a इंटू वन और प्लस b का 0 विच इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एक्स प्लस बी. दिस इज द फाइनल आंसर.